آج ہمارے پاس ایک یوٹیوب انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو کسی کی زندگی میں آنے والے ایک بہت بڑے بھون چال کی کہانی سناتا ہے. جی. یہ یزدان شیخ کی کہانی ہے. ایک ایسا شخص جو ایک عقیدے میں پیدا ہوا اور پھر ایک ایسے راستے پر چل پڑا جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آج ہم اسی سفر کی گہرائیوں میں اتریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی اپنی جڑوں کو چھوڑ کر ایک نئی شناخت کیوں اپناتا ہے، اس میں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں، اور سب سے دلچسپ بات، وہ اپنی نئی کمیونٹی کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اور یہ صرف ایک شخص کے مذہب بدلنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ اس بارے میں ہے کہ ہم اپنی شناخت کیسے بناتے ہیں، ہمارے تعصبات کیسے تشکیل پاتے ہیں، اور کیسے بعض اوقات زندگی کا سب سے بڑا موڑ ایک غیر متوقع راستے سے آتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ ایک سادہ سا سوال، کچھ حالات اور علم کی پیاس کسی کی دنیا کو کیسے الٹ پلٹ کر رکھ سکتی ہے. چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں. یزدان کی کہانی کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو بچپن میں شاید ہم میں سے بہت سو کے ذہن میں آیا ہوگا. وہ سوچتی تھی کہ جس خدا کی پوجا ہم ہندوستان میں کرتے ہیں وہ ہندوستان سے باہر کیوں نہیں ہے؟ اگر خدا ایک ہے تو پھر ہر ملک، ہر قوم کا بھگوان الگ کیوں ہے؟ یہ بظاہر بچوں والا سوال ہے، لیکن اس میں بہت وزن ہے. بالکل، اور یہ دراصل کوگنیٹو ڈسوننس یعنی فکری تضاد کی ایک ابتدائی شکل ہے. جب ایک بچے کا ذہن دو مخالف خیالات کو ایک ساتھ پروسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلا یہ کہ خدا ایک ہے اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کا خدا الگ نظر آتا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. صحیح. زیادہ تر لوگ معاشرے کے دیے گئے جوابات کو قبول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہی بے چینی زندگی بھر کی تلاش کا نقطۂ آغاز بن جاتی ہے. اور ان کی تلاش کا راستہ تو بالکل ہی انوکھا تھا. یہاں آ کر تو کہانی میں ایک فلمی موڑ آتا ہے. جی. ان کا اسلام سے تعارف کسی عالم یا مبلغ کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کی کوشش میں ہوا. یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ اتنا گہرا روحانی سفر پیسے کمانے کی نیت سے شروع ہوا؟ سے سمندر میں کود گئے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے. اچھا. انہوں نے اسلامی مواد جیسے تقریر اور ڈرامہ اور تغرل غازی پر ریاکشن ویڈیوز بنانا شروع کی. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی غیر مسلم ایسا کرتا ہے تو اسے ویوز بہت ملتے ہیں. یعنی الگورتھم انہیں ہدایت کے راستے پہ لے آیا، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ پیسے کمانے کی خواہش ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی. جب آپ تعصب کے بغیر یا کسی بھی نیت سے مواد کو بار بار دیکھتے اور سنتے ہیں تو اس کا اثر ہونا لازمی ہے. معلومات آپ کے پہلے سے بنے ہوئے تصورات کو توڑنا شروع کر دیتی ہے. اور ان کے تصورات بھی کمال کے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات وہی تھے جو شاید بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں. سب سے حیران کن بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ تمام مسلمان پاکستانی ہوتے ہیں. جی. مطلب انڈونیشیا، مشرق وسطیٰ، افریقہ، کروڑوں مسلمان ان کے ذہن کے نقشے پر تھے ہی نہیں. یہ تعصب کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. جی، اور یہ صرف جغرافیائی غلط فہمی نہیں تھی، انہیں عبادت گاہوں کا فرق بھی نہیں معلوم تھا. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان درگاہوں میں موجود قبروں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا. انہیں مسجد کے تصور کا علم ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں صرف ایک خدا کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، کسی وسیلے کے بغیر. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں مسلمانوں کی ایک بہت منفی تصویر بنی ہوئی تھی کہ وہ خطرناک، خونخوار اور ظالم ہوتے ہیں. یہ وہ امیج ہے جو اکثر میڈیا کے ذریعے بنائی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصویر بنی کیسے، اور اس سے بھی اہم یہ ٹوٹی کیسے؟ دیکھیں، میڈیا کا کردار تو ہے، لیکن صرف میڈیا کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی شاید پوری تصویر نہ ہو. یزدان نے خود بھی ایک اہم بات کی کہ مسلمانوں کا اپنا کردار کیسا ہے. اگر لوگوں کا مسلمانوں سے ذاتی مثبت تجربہ ہو تو میڈیا کا بنایا ہوا تاثر خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے. یزدان کی اپنی غلط فہمیاں تب دور ہونا شروع ہوئیں جب انہوں نے معلومات کو براہ راست اس کے ماخذ سے لینا شروع کیا، بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے. انہوں نے کچھ عام غلط فہمیوں کا ذکر بھی کیا ہے جو غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں، جیسے صفائی ستھرائی کا معاملہ. ایک تاثر ہے کہ مسلمان صاف نہیں رہتے. ہاں، جبکہ وہ دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں، جو خود پاکیزگی کی ایک بڑی علامت ہے. بالکل. اور خواتین پر ظلم کا بیانیہ بھی بہت عام ہے.
4 शादियों के तस्वुर को इसके असल सियाको सबाक और शराइत को समझे बगैर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सही। हाँ। यज़दान के मुताबिक जब उन्होंने खुद तहकीक की तो उन्हें पता चला कि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ यज़दान एक बहुत अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि इन गलतफहमियों को दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि खुद मुसलमानों पर भी है। बिल्कुल। उनके मुताबिक मुसलमानों को अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम की दावत देनी चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं। जी। उन्होंने कश्मीर की मिसाल दी कि वहाँ के लोग सयाहों से जिस मोहब्बत और ईमानदारी से पेश आते हैं वो खुद इस्लाम का बेहतरीन तारुफ है। यही वो नुक्ता है जिसे लिव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। जब कोई आपके किरदार को देखता है तो वो 1000 तकरीरों से ज्यादा मुअस्सर होता है। यज़दान के कहना है कि अगर मुसलमानों का अखलाक वैसा होता जैसा उनके नबी का था तो शायद लफ्जी दावत की जरूरत ही ना पड़ती। तो जब इनकी ये गलतफहमियां दूर हुईं और उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया, तब उनकी असल जद्दोजहद शुरू हुई। ये कोई आसान मरहला नहीं था। शुरू में वो अपने दोस्तों और घर वालों से छुपकर नमाज पढ़ते थे। कभी पेट दर्द का बहाना, कभी सर दर्द का, ताकि बस 5 मिनट की तन्हाई मिल सके। ये तब्दीली के अमल का सबसे मुश्किल नफ्सियाती मरहला होता है। एक तरफ आपको एक नई सच्चाई मिलने की खुशी होती है और दूसरी तरफ ये खौफ कि आपके प्यारे आपको गलत समझेंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। सही। ये एक बहुत ही तन्हा कर देने वाला एहसास होता है। उन्होंने पहली बार आगरा में अपने एक दोस्त को हिम्मत करके बताया कि वो नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। खुशकिस्मती से उस दोस्त ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और बात आई गई हो गई। लेकिन घर वालों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तकरीबन 1 साल तक अपने वालिदैन के सामने नमाज पढ़ते रहे, लेकिन कभी जुबान से नहीं कहा कि वो मुसलमान हो चुके हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि उनके वालिदैन का रद्द-ए-अमल क्या था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा इबादत कर रहा है। उन्होंने सोचा कि चलो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, नशा तो नहीं कर रहा, इबादत ही कर रहा है, करने दो। जी, ये खामोश कबूलियत बहुत गैर मामूली है। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसे यज़दान खुद एक मौजिज़ा कहते हैं, जब इनके वालिद ने ना सिर्फ इन्हें कबूल किया बल्कि एक दिन खुद उन्हें फजर की नमाज के लिए उठाया। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल। ये इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि सब्र और अच्छा रवैया बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाली दीवारों को भी गिरा सकता है। बिल्कुल। ये कहानी का वो जज्बाती उरूज है जहाँ खानदानी मोहब्बत अकीदे के इख्तिलाफ पर गालिब आ जाती है। उनके वालिद उनके सबसे बड़े हमायती बन गए। ये जाहिर करता है कि अगर आप अपनी तब्दीली के बाद ज्यादा बेहतर इंसान बन जाएं, तो लोग आपके अकीदे पर सवाल उठाने के बजाय आपके किरदार की तारीफ करने लगते हैं। और इस सारे सफर में उन्होंने दीन सीखा भी खुद ही, वो भी ऑनलाइन। ये भी एक अहम बात है। नमाज पढ़ने का तरीका उन्हें कुवैत में रहने वाले एक शख्स ने व्हाट्सएप पर सिखाया। ये आज के दौर की हकीकत है। इल्म अब सरहदों का मोहताज नहीं रहा। ये जाहिर करता है कि रहनुमाई कहीं से भी आ सकती है। एक शख्स हजारों मील दूर बैठकर आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अब यहाँ से गुफ्तगू एक बहुत ही दिलचस्प और शायद मुतनाज़ा मोड़ लेती है। जी। एक नए मुसलमान के तौर पर यज़दान ने अपनी नई कम्युनिटी पर एक बहुत गहरी तनकीदी नज़र डाली है। उनका पहला नुक्ता यह है कि मुसलमान दावत देने में यानी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और ये बात उनके ज़ाती तजर्बे से आती है। वो कहते हैं कि उन्हें इस्लाम किसी मुसलमान ने नहीं सिखाया, उन्होंने खुद ढूंढा। बिल्कुल। उनका मानना है कि मुसलमान अपने किरदार और अखलाक से दावत देने का फन भूल चुके हैं। वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। इनका दूसरा नुक्ता फिरकावारियत पर था। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी का नहीं पता था, वरना मैं शायद कभी मुसलमान ना होता। ये कितनी बड़ी बात है कि एक बाहर से आने वाला शख्स हमारी अंदरूनी तकसीम को सबसे बड़ी रुकावट समझता है। बिल्कुल। और ये कन्वर्ट्ज़ील का एक तरलू भी है। वो दीन की खालिस तरीन असली शक्ल की तलाश में आता है। उसे नजरियाती पाकीज़गी चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि अंदर भी वैसी ही गिरोबंदी है जिससे वो भागकर आया है, तो ये उसके लिए एक शदीद धचका हो सकता है। सही। वो एक मुत्तहिद उम्मत का तस्वुर लेकर आता है और उसे यहाँ फिरके मिलते हैं। तीसरी तनकीद जो वो करते हैं वो ये है कि पैदाइशी मुसलमान दीन को बहुत हल्के में लेते हैं। खास तौर पर नौजवानों के लिए नमाज छोड़ देना कोई बड़ी बात ही नहीं है। जी।
वो इस पर हैरान हैं कि जिस चीज को पाने के लिए उन्होंने इतनी जिद्दोजहद की, वो चीज जिन लोगों के पास पहले से है उन्हें इसकी कदर ही नहीं। ये वही क्लासिकी तजाद है। जो अकीदा विरासत में मिलता है वो अक्सर एक सकाफती रस्म बन जाता है, जबकि जो अकीदा जिद्दोजहद से हासिल किया जाता है वो एक शऊरी अज़्म होता है। यज़दान का नुक्ता ये है कि पैदाइशी मुसलमानों पर जिम्मेदारी ज्यादा है, उन्हें जन्नत को अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए। वो एक बहुत ताकतवर मिसाल देते हैं कि जो शख्स नदी के किनारे प्यासा मर जाए उस पर सब्र नहीं आता। और उनकी आखिरी और सबसे गहरी बात शायद ये है कि मुसलमान जज्बाती बहुत हैं लेकिन अमली नहीं। अच्छा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर रो पड़ते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन जब उनकी तालीमात पर अमल करने की बात आती है, सच बोलना, ईमानदारी, अच्छा इखलाक, तो वहाँ वो नजर नहीं आते। ये एक बहुत अहम मुशाहिदा है। ये मजहबी शनाख्त को कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस के तौर पर अपनाने और उसे जिंदगी का हिस्सा बनाने के दरमियान फर्क को जाहिर करता है। बिल्कुल। यज़दान जैसे लोग बाहर से आकर इस तजाद को बहुत वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जबकि जो लोग इस माहौल में पले बड़े होते हैं वो अक्सर उसके आदी हो जाते हैं। तो अगर इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो यज़दान का सफ़र एक बच्चे के मासूम सवाल से शुरू हुआ। जी। पैसे कमाने की एक अमली ज़रूरत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। और जब उन्होंने ये रास्ता अपना लिया तो वो सिर्फ एक खामोश पैरोकार नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपनी नई कम्युनिटी को एक आईना भी दिखाया। बिल्कुल। यज़दान की कहानी हमें दो अहम बातें सिखाती है। पहली ये कि किसी भी गुरोह के बारे में पहले से कायम करदा तसव्वुरात कितने खतरनाक हो सकते हैं। असल समझबूझ हमेशा बराह रास्त इल्म हासिल करने से आती है। सही। और दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात एक कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ी इस्लाह की आवाज़ बाहर से आने वाले शख्स की होती है, क्योंकि वो उन खामियों को देख सकता है जिन्हें अंदर वाले नज़रअंदाज कर चुके होते हैं। यज़दान ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि लोग बशमूल बहुत से मुसलमान कुरान को बगैर समझे तोते की तरह पढ़ते हैं। जी। इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है जिसे मैं हमारे सामीन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। किसी भी अकीदे, नज़रिए या फ़लसफ़े को सही मानों में जानने के लिए क्या इसके बुनियादी मतन को अपनी ज़बान में समझना पहला और सबसे लाजमी कदम नहीं है? चाहे इंसान उसमें पैदा हुआ हो या उसे बाद में अपनाया हो, क्या बग़ैर समझे